Bismillah Rahman Rahim. I am Sayyid Atiq Rahman, graduated from NED University. This training session is brought to you with the collaboration of Petroleum Club of Pakistan and Enabling Expertise. I am thankful to Petroleum Club of Pakistan who have called us and they have arranged this session for newcomers and students who are in this field. So come with the slides. Our presentation agenda is upstream and getting oil to market, oil and gas formation, and then reserves, the categories of reserves, and oil project life cycle. We will complete these topics today, and later on in the next session, we will go through developing oil and gas projects, risks from concept to completion, then design, execution, operation task, primary and secondary recovery, and maybe tertiary recovery as well. Then we'll go to project feasibility, key processes, key discipline. We'll also discuss the activities in parallel with surface facilities, reservoir drilling, and other facilities development phases. So in project phases, we will overview project initiation, concept, feed, define, and detailed execution phases. So through these phases, we'll have interaction with the different processes like PMDR, SE, and you know about the HSCC activities. These are management, project management, and HSC activities. And then along with this, we'll go through the governance activities like PAS, PAN, and again the design activities, design quality assurance review has a stakeholder management as governance activity, toll gates, and all these activities we will discuss in brief or detail. Then last but not least is O&M and its interface with project. I mean operation and maintenance and interface with project. So these all topics will be discussed in later session. Uh, from here, I would like to start or shift the mode of language. Uh, we know that oil and gas, it's a very important part of our life. और we know कि crude oil और natural gas जो है ये दो potential और probably the most watched, closely watched communities हैं global economy के अंदर. इसी तरह से हमें अच्छी तरह से we are aware कि जो oil fuel है it's a part of our life. How कि एनर्जी की सूरत में, पावर की सूरत में, हम घर पर, अपने ऑफिस पर, फिर हम मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की सूरत में, फिर जो हीटिंग इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड है उसके लिए, तो रोड्स के ऊपर जो वी ट्रेवल, तो एस्फाल्ट इज अ हाइड्रोकार्बन. इसी तरह से देयर आर थाउजेंड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक जो कार्स के अंदर डैशबोर्ड है, दिस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. इसी तरह से हमारी जो जिंदगियों पर इम्पैक्ट है ऑयल एंड गैस का, कि किस तरह से इलेक्शंस में, जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं दैट शुड हैव नॉट बीन देयर. तो ये सारी चीजें भी पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इट मेक्स ऑयल एंड गैस अ वेरी एक्सक्लूसिव थिंग कि ये हमारी जिंदगी के लिए हम इसको जानते हैं कि ये बड़ा नोन फैक्टर बन गया है. इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस के अंदर फॉर लास्ट 6 to 7 डिकेड्स ये हुआ है कि स्पेसिफिक कंट्रीज जो थे वो इसके ऊपर होल्ड किए हुए थे इसकी मार्केट के ऊपर. वो एक अलग पूरी डिबेट और डिस्कशन है, लेकिन रिसेंटली ये हुआ है कि देयर आर कंट्रीज लाइक काजाकिस्तान, रशिया, वेनेजुएला, दे गॉट ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट. इसी तरह चाइनीज दे have acquired exploration rights at record high prices. इसी तरह जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, they have struggled a lot or they became oil exporting nations.
तो ये ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, हुआ है रिसेंटली, इट्स अ बिग चेंज। लेकिन साथ-साथ वर्ल्ड वाइड स्ट्रैटेजी ऑयल एंड गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है विद द हीटेड डिस्कशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और जो इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जिसमें कि सोलर है, विंड है, और इसी तरह से जो ह्यूज मूवमेंट हुई है क्रूड प्राइसेस के अंदर, जिससे हम सब जिससे अफेक्टेड हैं। इसी तरह से जो प्रेडिक्शंस हैं नेक्स्ट डिकेड के लिए कि बाय 2030 40% ग्लोबल डिमांड राइज आएगा एनर्जी का, लेकिन वेयर ऑयल एंड गैस विल बी प्लेस्ड एट दैट टाइम, बिकॉज के जो हाइड्रोजन के ऊपर भी जिस तरह से काम हो रहा है, और वो इट्स गोइंग टू बी बिकम अ पार्ट ऑफ फ्यूल। तो ये हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम आगे हैं कि अपस्ट्रीम एंड गेटिंग ऑयल टू मार्केट। We know okay, there are three categories, three areas of oil and gas. We start with the things, and up till and unless we produce oil, that area is called upstream. जब हम produce कर लेते हैं तो that area is changed now. कि जब आप लीज एक एरिया की लेते हैं, वहाँ पर R&D करते हैं, एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन हो जाती है गैस ऑयल की, तो ऑयल जो है वो या तो ट्रेड होता है या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है शिप और पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरीज को। इसी तरह गैस जो है वो अपस्ट्रीम में ही प्रोसेस होती है, और H2S और CO2 जो भी है, अगर सावर गैस है तो उसको प्रोसेस करके फिर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं मिड स्ट्रीम के थ्रू उसकी मार्केट में, जो कि डाउन स्ट्रीम में चला जाती है। फिर LNG भी आजकल मार्केट हो रही है, पहले उसकी लिक्विफिकेशन होती है अपस्ट्रीम में, फिर उसके बाद वो मिड स्ट्रीम के थ्रू डाउन स्ट्रीम में वो मार्केट होती है। तो ये हमारे थ्री एरियाज हैं, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। दे आर सेपरेटली हैंडल्ड by the companies, or they're separately managed by the companies. Now we come to our actual topic, formation of oil and gas deposits. We know कि अर्थ सरफेस के बारे में स्टोरीज मौजूद हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो ऑर्गेनिज्म मौजूद था, उसकी वजह से इस तरह डायनासोर्स के बारे में, डायटोमिक्स के बारे में, तो एक हद तक ये चीज़ें, लेकिन जो जियोलॉजी कहती है वो ये कि ऑफशोर्स के अंदर जो डेप्थ के अंदर जो रॉक्स बनती हैं, जहाँ पर के सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं जो अपने असरात छोड़ती हुई रॉक्स के ऊपर जाती हैं, उसमें होता ये कि ऑर्गेनिज्म जो है वो हीटेड टेम्परेचर के ऊपर, जो कि 65 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 7000 के बाद जो डेप्थ होती है 18,000 फीट के और मोर इसके ऊपर, तो वहाँ पर ये फॉर्मेशन होती है सोर्स रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स की। फिर होता ये है कि बायंसी की वजह से जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड गैस मॉलिक्यूल्स, दे माइग्रेट अपवर्ड, और वो दे मेक अ कैप रॉक, वहाँ पे वो फॉर्मेशन होती है जो कि गैस कैप बनाते हैं, विच ट्रैप्स द ऑयल एंड गैस, और वो दे फॉर्म द रिजर्वॉयर। तो इस तरह से गैस जो है फॉर्म्स अ कैप अबव द ऑयल। तो ये प्रोसेस सारा होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स के अंदर। सिंपल सा हमने इसको देख लिया। इसके बाद ऑयल एंड गैस फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की होती हैं। इसमें से कुछ आपके सामने ये है कि एंटीक्लाइन फॉर्मेशन है, जिसमें आप ऑयल नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर गैस कैप जिसके हमने किया कि पोरस रॉक के ऊपर ये साथ ये होती है, जो कि इस तरह वर्टिकली आप इस तक पहुंच सकते हैं। सॉल्ट डोम फॉर्मेशन भी होता है कि आप देखें डोम के दोनों तरफ आपके रिजर्व्स मौजूद हैं, तो इसमें आप एक वर्टिकल जो स्ट्राइक के साथ आपके लिए पहुंचना डिफिकल्ट है। इसलिए फॉर्मेशंस को हम समझ रहे हैं कि फॉल्ट फॉर्मेशन है, इसमें भी हम उस तरह से हिट नहीं कर सकते जैसे कि वर्टिकल ड्रिलिंग हम जब कर रहे होते हैं। तो इसके लिए फिर इसी तरह से एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी फॉर्मेशन में भी होता है कि इसमें फिर हमें एंगुलर ड्रिलिंग के ऊपर, डायरेक्शनल ड्रिलिंग के ऊपर जाना पड़ता है। तो ये फॉर्मेशन समझने का मकसद यही है कि जो हमारी एक्सेस है इन तक वो कैसे होनी है। ये जो टेबल है ये मैप करता है कि जो पेट्रोलियम इनिशियली इन प्लेस है रिजर्वायर के अंदर, लेफ्ट साइड पे आप उसको देख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टली ये शो कर रहा है कि इसकी जो इकोनॉमिकल और कमर्शियल अवेबिलिटी है वो कैसी है, उसकी अनसर्टेनिटी, स्टेज ऑफ सर्टेनिटी के हिसाब से, यानी रेंज ऑफ सर्टेनिटी में प्रोडक्शन से लेकर अनरिकवरेबल इसकी कैटेगरीज हैं। यानी दो कैटेगरीज इसमें बेसिकली लेफ्ट साइड पे यू कैन लुक एट कि अनडिस्कवर्ड है एंड देन डिस्कवर्ड है। अनडिस्कवर्ड में आपके पास प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज हैं बाय योर स्टडीज, कि वो आपको प्रोस्पेक्ट्स और लीड्स दे रही होती हैं, वी कैन प्ले विद दैट। और इसका जो दूसरा हिस्सा है
डिस्कवर्ड, उसके अंदर 4 पार्ट हैं जो कि कमर्शियल या सब कमर्शियल हैं। तो उसमें जो अनरिकवरेबल है, उसको हम अनरिकवरेबल क्यों कहते हैं? की वजह ये है कि बेसिकली तो होता ही है कि द टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल जो कि एस्टिमेटेड है टू एग्जिस्ट विद इन अ रिजर्वायर, दैट इज कॉल्ड द ऑयल इन प्लेस, और द पोर्शन ऑफ दैट ओआईपी इज रिकवरेबल। उसकी रीजन क्या है? फिजिकली दैट रीजन इज के द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और कॉस्ट ऑफ जो एक्सट्रैक्शन मीन्स हैं एंड द करंट मार्केट प्राइसेस हैं, ये सारे मिलकर उसको रिकवरेबल बनाते हैं। द लेफ्ट जो पोर्शन होता है जो कि इकोनॉमिकली रिकवरेबल नहीं हो सकता, उसकी फिजिबिलिटी नहीं होती बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड, कि टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ मीन्स जो टूल्स हैं, एक्सट्रैक्शन मीन्स हैं, या मार्केट प्राइसेस हैं। तो इनकी वजह से आप उसको छोड़ देते हैं तो वो कंटीजेंट रिसोर्सेज में आ जाती हैं या अनरिकवरेबल होती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कंटीजेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इस वक्त जो प्रोडक्शन आप ले रहे होते हैं वो तो मेजर्ड होती है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है, ओवर द टाइम आप उसको यू आर अचीविंग दैट, बट अनरिकवरेबल है जो कि that cannot be produced because of the technology you have and the knowledge you have currently, which is the uh, reluctance to that, and you cannot do that. तो आपको रिकवरेबल बनाने के लिए इसको टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट चाहिए एंड यू हैव टू एनहेंस योर नॉलेज। इसी तरह से कंटीजेंट रिसोर्सेज वो हैं जो कि पोटेंशियली तो रिकवरेबल हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अभी उस मैच्योर फेज तक नहीं पहुंचा, उसकी कमर्शियल डेवलपमेंट उस लिहाज से नहीं हुई कि जैसे कि आपने फॉर्मेशन देखी थी, सिंपल फॉर्मेशन में तो आप उस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपके पास पॉकेट्स में है या आपके फॉल्ट्स आ गए हैं या एंगुलर आपका ये डायरेक्शनल ड्रिलिंग करनी है, तो दैट गोज इनटू द कॉन्टिजेंट। तो इसमें अगेन टेक्नोलॉजी और कमर्शियल मार्केट जो है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको हैंडल करते हैं। तो ये आपकी अब आप आ जाते हैं रिजर्व्स की तरफ कि रिजर्व्स को आप किस तरह से देखते हैं। तो रिजर्व बेसिकली इनको हम दो तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी इनकी कैटेगरीज जो हैं वो दो हैं, एक प्रूफ्ड हैं, दूसरे अनप्रूव्ड हैं। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो प्रूफ्ड को ही एक्सेप्ट करेगी, ज़ाहिर है अनप्रूव्ड को तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसकी बेसिस क्या होती है कि जो प्रूव्ड है उसमें आप देखेंगे कि जो आपकी जोलॉजिकल फीचर्स हैं, जोलॉजिकल स्टडीज के जरिए से जो आपको पता लगते हैं। इसी तरह इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, जो आपकी मार्केट है उस क्रूड ऑयल की या जो चीज़ भी आपके पास आ रही है, गैस है, सावर है, सॉलिड है, उसकी जो आपकी इकोनॉमिक्स बन रही है, ठीक है? तो उस इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप उसको आप उसको प्रूव करेंगे। तो इफ दैट गोज़ अप टू 90% प्रोबेबिलिटी, तो 1P कहलाएगी। और ये 2 चीज़ें जो है यानी प्रूव डेवलप्ड और अनप्रूव डेवलप्ड उसके अंदर आएँगी। इनमें क्या डिफरेंस है? प्रूव डेवलप्ड के अंदर भी फिर आपके पास जो बेसिस मैंने आपको बताई थी, वही हैं, दोनों के अंदर वही रहेंगी। बाकी की भी कैटेगरीज में वही रहेंगे कि जोलॉजिकल फीचर्स और इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं, दैट मेक्स ऑल दिस कैटेगरीज। तो ये डिफाइन कर रही हैं। तो इसमें बेसिकली डेवलप्ड के अंदर तो वो वेल्व जो कि आप हिट कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोड्यूसिंग वेल्व हैं, उनके जो नेबरिंग वेल्व हो सकते हैं इन सम केसेस के अंदर, जिसमें थोड़े से डिटेल्ड टेस्ट इन्वॉल्व हो, जिस तरह कोर एनालिसिस है, वो आपने नहीं उस तक अचीव कर सके, क्योंकि कोर एनालिसिस करने के लिए फर्दर आपको उसमें अप्रोच करनी पड़ेगी ड्रिलिंग के थ्रू, तो वो अनडेवलप्ड वेल्व रह जाते हैं। तो वो बेसिकली तो प्रूव में आते हैं, ठीक है, और दे आर अनडेवलप्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन, मार्जिनल इन्वेस्टमेंट की वजह से वो स्टॉप है या नहीं कर सके। फिर आप इनको हमने एड्रेस कर लिया, अब हम अनप्रूव्ड की तरफ आते हैं। अनप्रूव्ड वो हैं जो कि बेसिकली कैन नॉट बी प्रूव्ड एज इक्वल एज द प्रूव्ड 90%, यानी 1P नहीं हो सकते। दे कैन बी प्रूव्ड 50%, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इसकी और ज़्यादा कम हो जाती है उस लिहाज से कि इसकी प्रूव्ड में भी हैं और ये प्रोबेबल भी हो गए, और इसकी बेसिस भी वही है कि जोलॉजिकल फीचर्स के एस्पेक्ट से और इकोनॉमिकल फैक्टर्स के एस्पेक्ट से आप इसको 50% तक ही प्रूव कर सकते हैं। इसमें फिर वो पार्ट जो कि पॉसिबल में आता है, ये वो है जो कि इनकी कोई एक्सटेंशन हो, यानी प्रूव्ड वेल्स की या प्रोबेबल की एक्सटेंशन हो, जहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी आपको पता लग रही हो। इसकी रीजन जो है वो हो सकती हैं कि आपके जो लॉग्स हैं
लॉग इंटरप्रिटेशन है, उनकी वजह से आपको पता लग रहा हो कि यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसमें फर्दर टेस्ट भी रिक्वायर्ड है। इसमें फर्दर हो सकता है कि इनहेंस रिकवरी मेथड्स जो हैं वो डेफिनेटली वो तो प्रॉब्लम में भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रोबेबिलिटी को और कम कर रही होती हैं। तो ये फिर 3P हो जाते हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 10% तक चली जाती है। तो ये हमने डिफाइन किए कि हमारे जो फैक्टर्स हैं जो कि 1P, 2P और 3P डिफाइन करने में होते हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर इंडिकेट होते हैं जियोफिज़िक्स से, जियोलॉजिकल स्टडीज़ से, और उसके साथ-साथ इकोनॉमिकल जो स्टडीज़ हैं उनके पैरेलल में। उससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि 1P है, 2P है और 3P है। ये हमने डिफरेंशिएट किया। इसके साथ हम आ जाते हैं वेल डेवलपमेंट मैनेजमेंट के ऊपर, कि जिसमें हमें पता है कि 5 इसके डिफरेंट एरियाज़ हैं। यूजुअली तो ये जो एरियाज़ हैं, ये हम एक्सप्लोरेशन से शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि जब आप एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं, आपको टारगेट्स पता लग जाते हैं कि ये एरिया इसमें रिज़र्व मौजूद हैं, तो उस एरिया में आपने जो एक्टिविटीज़ करनी है, जिससे कि आपने टेस्ट करके फर्दर उसको कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो वहाँ उस एरिया में आपने कंसेशन लेनी है। उस एरिया की आपने राइट्स लेने हैं, ड्रिलिंग के राइट्स लेने हैं। तो ड्रिलिंग राइट्स के लिए जब लैंड की तरफ जाते हैं, तो लैंड डिफरेंट टाइप के उसमें पोज़ीशंस हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट होल्ड करती हो उस लैंड को। ये भी हो सकता है कि उसकी पोज़ीशन जो है वो पब्लिक की हो और गवर्नमेंट उसको रूल करती हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो प्राइवेट किसी की प्रॉपर्टी हो। तो ये सारे केसेस के अंदर कंसेशंस जो हैं उनकी वो लेनी लेनी है, लेकिन इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, टैक्स या रॉयल्टी के होने हैं या प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ पोज़ीशन क्या है। इसके साथ-साथ जब ये ड्रिलिंग राइट्स आप ले रहे होते हैं, तो कंपनीज़ जो होती हैं वो और भी इसमें स्ट्रगल कर रही होंगी, तो उनको भी ये लाइसेंस दिए जा सकते हैं। लेकिन फर्दर व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि यू हैव समथिंग देयर और यू आर गोइंग फॉर द वेल, जो आप एक्सप्लोरेटरी वेल है और अप्रेज़ल वेल, और वहाँ आप पे फर्दर प्रूव कर रहे होते हैं, तो फिर देन दे गिव यू द ड्रिलिंग राइट्स एंड वो फिर कंपनीज़ को फिर वो रिस्ट्रिक्ट करते चले जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्लोरेशन के ऊपर, कि जब आपने एक एरिया डिफाइन कर लिया कि इस एरिया के अंदर आपके टारगेट्स आपको पता हैं, आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि जो आपकी जियोलॉजिकल पोटेंशियल है और रिकवरेबल जो क्वांटिटीज़ हैं ऑयल एंड गैस की वो आइडेंटिफाई हो गई। उसका जो फर्दर जो लाइक्लीहुड है, उसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये आप जा सकते हैं, तो फिर आप सेस्मिक सर्वेज़ के ऊपर जाते हैं। सेस्मिक सर्वेज़ में बेसिकली जो आप चीज़ें एक मैप कर रहे होते हैं, वो रॉक लेयर्स को, जो अंडरग्राउंड लेयर्स हैं, उनको उनकी टोपोलॉजी करते हैं, उनकी जो अगर ऑयल एंड गैस के ट्रैप्स वहाँ मौजूद हैं, तो उनका डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो हमने टॉप सील की बात की थी, जो गैस कैप है, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं आप सेस्मिक सर्वेज़ में। ताकि आप हिट करें तो आपको पता हो कि यहाँ पर रिजर्वायर मौजूद है। तो फिर आप इस एक्सप्लोरेटरी वेल के लिए जा रहे होते हैं। एक्सप्लोरेटरी वेल पे जब जाते हैं, हिट करने की जगह आपको कैप्स पता लग जाती हैं, तो उस पर आपकी जो ऑब्जेक्टिव होता है या पर्पज़ होता है एक्सप्लोरेटरी वेल का, वो ये होता है कि आप उसको हिट करके उसका जो प्रेशर है और फिर फ्लो रेट्स हैं, यानी नेचुरल फ्लो जो रेट है फ्लूइड का, उसको वो आप आइडेंटिफ़ाई करें, उसको डिटरमाइन करें। फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि सावर है, स्वीट है, यानी इसमें H2S है, CO2 है और किन चीज़ें पॉसिबल है, इसमें ऑयल के साथ वाटर कट कितना है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्सप्लोरेटरी वेल्स से आपको मालूम होनी शुरू होती है। यहाँ हमने देखा था कि जब हम एक्सप्लोरेटरी वेल्स तक आ जाते हैं, या एक्सप्लोरेटरी वेल के ऑब्जेक्टिव हमें पता है, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के साथ-साथ फिर हम ये करते हैं कि अप्रेज़ल वेल्स के लिए फिर हम स्ट्राइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि आपको एक फ़ील्ड का आइडिया हो गया कि ये फ़ील्ड जो है, इसमें स्ट्रेंथ है, इसके अंदर आपके रिज़र्व जो हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको अ 1P की तरफ लग रही है, तो फिर आप उसमें अप्रेज़ल वेल की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली तो इसमें जो वेल्स हैं वो आप जो कर रहे होते हैं, अगर ऑफशोर है तो शैलो और डीप वाटर दोनों तरह के होते हैं, उस पर जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी ड्रिलिंग इक्विपमेंट की तरफ, कि ड्रिलिंग इक्विपमेंट यानी ड्रिलिंग शुरू करने से पहले
थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि तो सबसे पहला टास्क होता है, चाहे वो ऑनशोर ड्रिलिंग हो या ऑफशोर ड्रिलिंग हो, उसमें हम नेसेसरी टास्क ये होता है कि आप उस साइट की जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है उससे उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी सराउंडिंग्स को, जो ड्रिलिंग प्रोसेस के दरमियान हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फ्लूइड मैनेजमेंट आपको करनी है, आपकी कंटेनमेंट जो है प्रेशर की वेल्स की वो आपने करनी है, फिर जो एक्सपोजर है हैजर्डस गैसेस का उसकी प्रोटेक्शन करनी है, और इसी के साथ बोरहोल करते हैं तो उसकी जो प्रोटेक्शन है, जो वेल केसिंग के ज़रिए से आप उसको करते हैं। इसी तरह से नीचे जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं एक बोर होल, ड्रिलिंग बोर होल, तो उसमें इम्परमेबल सील भी लगाते हैं ताकि वो ग्राउंड वाटर डीप तक वो जाए और फॉर्मेशन जो है ग्राउंड अंडरग्राउंड की रॉक की उस तक वहाँ पहुँचे। तो ये सारी प्रोटेक्शन के साथ जब हम अब इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट यूजुअली जो ट्रेडिशनल ड्रिलिंग होती थी उसमें डायरेक्ट यूज होती थी, जो कि एक हाउसिंग और ड्रिलिंग इक्विपमेंट की होती थी सारी, और उसमें भी जनरेटर्स, उसमें पंप्स हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं, जो हैवी बेल केसिंग है, फिर सब्सटेंशियल सेफ्टी इक्विपमेंट है, और इसके अलावा अभी हमने बात की थी कि बैक प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लॉट प्रिवेंटर हैं, फिर उसके बाद इजेक्शन, अनकंट्रोल इजेक्शन जो होती है हाइड्रोकार्बन्स की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रिवेंटर यूज होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है मोबाइल रिग्स भी अब यूज होती हैं, जो कि इस पर्पज के लिए होती हैं, ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट ही यूज करें। फिर जो ऑफशोर है, ऑफशोर पे मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स होते हैं, इसी तरह से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैकअप रिग्स हैं, जो कि यूज की जाती हैं। तो इसके साथ-साथ हमने भी बात की थी कि अगर फॉर्मेशन जो है वो उस तरह की हो कि जहाँ आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग के ज़रिए से आप अप्रोच नहीं कर सकते, तो डायरेक्शनल ड्रिलिंग में आप जाते हैं। टेक्नोलॉजी की चेंज हो जाएगी, थोड़ी-सी एक्सपेंसेस चेंज हो जाएंगी। इसमें हमने टाइप्स ऑफ जो रिजर्व्स हैं उस पर बात की थी या कंटिजेंट की बात की थी। तो अब हम उसमें ये इक्विपमेंट का चेंज करके या प्रोसेस की हमने बात की, तो ये प्रोसेस का चेंज करके हम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ इक्विपमेंट की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर सकते हैं, जो 90 डिग्रीज तक ये एंगल उसका चेंज हो सकता है। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेल कंप्लीशन। इसमें देखिए वेल कंप्लीशन जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो इससे पहले कि अब आपने रिग को यहाँ से रिमूव करना है, रिग को ले जाना है, तो आप एक सर्टेन डिजायर्ड डेप्थ तक पहुँच जाते हैं, तो केसिंग को सिमेंट के साथ आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप ड्रिलिंग रिग को वहाँ से रिमूव करते हैं, और जो एडिशनल इक्विपमेंट जो वेल के ऊपर लगाना होता है, जो कि इसकी प्रोडक्शन को इंश्योर करना है और सरफेस फैसिलिटीज के साथ इसको इंटरफेस करना है, तो वो वहाँ से ये वेल कंप्लीशन बेसिकली शुरू होती है। इसमें वेल कंप्लीशन में 3 प्रोसेसेस भी हैं जो कि आपने करने हैं। उसमें आपने फॉर्मेशन एवेल्यूएशन करनी है उसकी, और फॉर्मेशन एवेल्यूएशन के दरमियान जो टेस्ट होते हैं बेसिकली वो आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो आपकी प्रेशर रीडिंग्स हैं और सैंपल रॉक सैंपल्स हैं या उसकी सैलरी है, उसके ज़रिए से आप जो ऑयल और गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी अमाउंट को और इसके फ्लो रेट्स और ये सारी चीज़ें इंश्योर कर रहे होते हैं। तो साथ-साथ आप उसको देखते हुए सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर इसकी जो रॉक है इसको स्टिमुलेट किया जाए, इसके अंदर फ्रैक्चरिंग की जाए, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की जाए या एक्सप्लोसिव से की जाए, ताकि इसमें आप मज़ीद जो है इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें प्रोडक्शन को रॉक से, रॉक को ब्रेक करके। So completing a well involves all these necessary steps के जो एक वेल को प्रोडक्शन को प्रोड्यूसिबल बनाने के लिए की जाते हैं। तो इसमें परफोरेशन भी आप कर रहे होते हैं कि इसकी सराउंडिंग में केसिंग की जो जो फ्लो करके आना है फ्लूइड ने, तो उसमें डाउन होल के साथ-साथ आपने परफोरेशन भी करनी होगी। ताकि फिर उसके साथ आप इंसर्शन ऑफ डाउनलोड इक्विपमेंट आप करते हैं, और जिसमें कि मॉनिटरिंग और फ़िल्टरिंग जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है वो होती है। वेलेट की कंस्ट्रक्शन अब आप ऊपर की तरफ आते हैं और वहाँ करनी शुरू करते हैं, जिसमें केसिंग हेड है, प्रोडक्शन ट्री है, क्रिसमस ट्री है, वो उसकी इंस्टॉलेशन है। फिर और साथ आते हैं तो फिर सरफेस फैसिलिटी शुरू हो जाती है, जिसमें इनकी पाइपलाइन है, पाइपिंग है, और साथ में
जो सीपी कैथेटिक प्रोटेक्शन है उसकी इंस्टॉलेशन है, या कूलर है, या फिर उनकी मजीद जो हाइड्रोलिक पैनल्स है, कंट्रोल पैनल्स है, ये सारी चीज़ें सरफेस के ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कंप्लीशन का पार्ट है कि ये यहाँ से गैदरिंग के साथ आपकी इस ट्री की कनेक्शन हो। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है वेल प्रोडक्शन, जो कि रिकवरी मेथड्स हैं। तो इसमें रिकवरी रेट जो प्राइमरी या नेचुरल होता है वो 15% तक आप नेचुरल के ऊपर यूजुअली ऑयल फ्लो करता है। बाज़ लोगों पे ज़ाहिर है जब तक गैस ज़्यादा है, फ्लो के साथ है तो वो अचीव होता है। अदरवाइज़ फिर आप चले जाते हैं सेकेंडरी रिकवरी रेट्स के ऊपर, रिकवरी मेथड्स के ऊपर, जिसमें कि पंप्स भी यूज़ होते हैं जिसमें कि मशहूर है डोंकी पंप्स जो होते हैं। इसी तरह से आपके सब सरफेस पंप भी इसमें यूज़ होते हैं। इसी तरह से इंजेक्शंस यूज़ की जाती हैं, वाटर इंजेक्शन या स्टीम इंजेक्शन की जाती है, गैस इंजेक्शन भी की जाती है, जो कि आपके फ्लूइड को प्रेशराइज़ करके ऊपर लाने के लिए होती है। इसके अलावा एक टर्शरी रिकवरी मेथड भी यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, उसमें भी डिफरेंट और केमिकल्स के साथ ये की जाती है। इसके अलावा कंप्रेशन और कंबशन यूज़ की जाती है, जो हायर एपीआई जो होता है आपका ऑयल, हेवी ऑयल होता है, उसके लिए वो यूज़ की जाती है। तो ये हमने यहाँ पर जो मेथड्स यूज़ किए हैं, तो इसमें आपने देखा कि 4 स्टेजेस थी इसकी। इन 4 स्टेजेस के अंदर हमने पहली स्टेज में लैंड और लीगल डिपार्टमेंट था, जो कि इस काम को शुरू करता है। फिर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कि आप सेस्मिक करते हैं, जियोफिज़िक्स और जियोलॉजिस्ट जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनकी एक्टिविटी चल रही होती है। फिर उसके बाद जब आप एक्सप्लोरेशन वेल करते हैं, तो वहाँ से डेटा उठाते हैं और उनके फ्लो रेट्स को, प्रेशर को और क्वालिटी को इंश्योर करने के बाद अप्रेज़ल वेल की तरफ जाते हैं। साथ-साथ फिर आपकी सरफेस फैसिलिटीज़ जो होती हैं, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फ़ील्ड को डेवलप करते हैं और फ़ील्ड डेवलपमेंट पे आते हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर हम जाएँगे, तो वहाँ से हमें उसका अंदाज़ा होगा। तो ये जो एक्टिविटी है सारी की सारी, इसके बाद आप तो लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑयल फील्ड में अब हम इन स्टेजेस से गुजर चुके हैं कि हमने फील्ड को पैरेलल में डेवलप करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर एक्सटेंड करते हैं फील्ड को, जिसमें उसके इनफिल ड्रिलिंग होती है और इंजेक्शन वेल्स हैं, उसकी इंटरवेंशंस हैं वेल्स की, और जो पंप्स की मेंटेनेंस है या फ्रैक्चरिंग करनी है, तो ये सारा उसके स्टेज 5 में आ जाता है, जो प्रोडक्शन का काम है। तो ये सारे स्टेजेस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। नाउ आवर नेक्स्ट सेशन दैट विल कवर सरफेस फैसिलिटीज फ्रॉम कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, जिसमें प्री फीड, फीड और डिफाइन और डिटेल इंजीनियरिंग एंड देन कंस्ट्रक्शन फेज, एग्जीक्यूशन फेज, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हैंडिंग ओवर टू ऑपरेशन मेंटेनेंस, जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट फेज है, वो भी इसमें डिस्कस होगा। फिर साथ हम मेजर रिस्क जो ऑयल एंड गैस के हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि वैसे तो मेजर 2 रिस्क हैं, जो कि जिसमें से एक रिस्क का सबको आइडिया है, जो प्राइस का रिस्क है, सबको इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, जो कि 4-5 साल से ऑयल एंड गैस फील्ड के ऊपर है। इसके बाद जो मज़ीद रिस्क हैं, जो कि प्री कंप्लीशन और पोस्ट कंप्लीशन रिस्क हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रिस्क हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, जो कि एक-एक एक्टिविटी की जो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, वो इसमें डिस्कस की जाएँगी, फिजिबिलिटी, सिलेक्शन, डेफिनिशन और एग्जीक्यूशन फेज़ की। तो ये हमारी आज की सारे सेशन की जो टॉपिक्स थे, और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ जल्द ही इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान. They have given a very good opportunity for the लवर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज लवर्स, और इसके अलावा जो वो लोग जो कि ऑयल एंड गैस में अभी जिन्होंने कदम रखा है, और स्टूडेंट्स के लिए, इन सब के लिए ये सेशन जो है वो यूज़फुल भी होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वन अगेन, वंस अगेन।